Good evening, student. And today we are going to discuss the next topic that is the Viterbi algorithm. हमने पिछले लेक्चरों में हमने ये डिस्कस किया था about the convolutional code and convolution encoder, which were of the two type, that is the FIR and IAR, and so many methods. We are also discussing about the output, just like the time domain approach, and then matrix method, and then transfer method. Now we know the convolution code is a channel coding. If there is a decoding process, encoding process, then there is also the decoding process, because in last unit, that is about the Hamming code, there is the syndrome decoding, which correspond to the linear block code. Similarly, Viterbi algorithm, and which are used in the decoding process of the convolutional encoder. Now, the by name a scientist Viterbi, and this algorithm is called as the Viterbi algorithm. Now, there and as we know in the last lecture, we are discussing about the so many diagrams, like the code tree, and then trellis diagram and state diagram. Like trellis diagram ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था, जस्ट लाइक दैट, ये आपका जो फिगर था ट्रेलिस डायग्राम, बेसिकली हम इसी का यहाँ पे यूज करेंगे इसमें। ये आपको ये फिगर इंपॉर्टेंट है, and this figure which are used in the decoding process of the convolution encoder. Now, first of all, so many terms are there. First of all, I am going to discuss about the some terms and which are used to calculate or know the process or algorithm of the Viterbi. Now, the first is the Viterbi decoder. First of all, what is the Viterbi decoder? By name, Viterbi decoder means ये आपका एक decoder है which is used to decode the convolution code. And first of all we take the some example, and like let's represent the received signal by y. ओके, एज वी नो, हम स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो चैनल के पहले हमारा क्या होता है, इनकोडिंग प्रोसेस, एंड बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशनल इनकोडिंग, here the message bits converted into the output and then transmitted through the channel, and after at the receiver end where the actual data can be received, can recovered from the transmitted data. Now let us consider represent the received signal by the y. Here y symbol which are used to indicate the received signal. Now the convolutional encoding operates continuously on the input data. Means this line indicate this algorithm operate continuously on input data. Means सारे जो inputs data है वो totally वो इसी पे depend करता है इस encoder में। यहाँ जो decoder हमारा है, decoder में हम जो input दे रहे हैं totally उसको depend करता है। ठीक है, मीन्स कॉन्टिन्यूसली उसको ऑब्जर्व हमें करना पड़ता है। नाउ लेट्स डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल मैट्रिक्स एज फॉलो। हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। द नेम इज कॉल्ड द मैट्रिक एज फॉलो। ओके, now the first parameter in the Viterbi decoder is the metric. No, and what is the metric, which can be also explained in this topic future by taking the some example. So first of all, what is the definition of the metric? It is the discrepancy between the received signal y and the decoded signal at the particular node. There is some also the parameter called the node, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा मैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिपेंसी फाइंड करते हैं। मीन्स या वी कैन से दैट देयर इज द सम, वी नो अबाउट द हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेटेड लाइक दिस, इफ वी जस्ट लाइक द, और आपसे मैं बोलूँ एक आपका ए है और ए को जो रिप्रेजेंट किया गया है 1 and 0 नंबर आपका है। सिमिलरली इफ देयर इज द बी, और बी मान लीजिए आपका हो गया 0 0। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस ये होता है कि ये दोनों जो आपके ए एंड बी हैं कितने प्लेस पे आपके बिट्स डिफर कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, देयर इज ओनली द वन बिट विच इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। Means here we can say that the distance between these two a and b is equal to the 1.
तो here also metric is the distance between the received signal and the decoded signal, means हम एक्चुअली जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं एंड डिकोडेड सिग्नल उसके बीच का डिफरेंस को फाइंड करना एट ए पर्टिकुलर नोड। अभी हम डिस्कस करेंगे हम आगे नोड्स क्या होता है, तो उस एक पर्टिकुलर नोड पे हमें उसको डिफाइन करना होता है, फिर हम मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। मीन्स आप कह लें कि आपके जो टेलिस डायग्राम था उस टेलिस डायग्राम में जितने बहुत सारे आपके नोड्स होंगे, जस्ट लाइक आपने जब पढ़ा था ए से हम ए पे गए एंड बी पे गए, इस तरीके से आपने जब आगे डिस्कस करेंगे अभी हम उसको यूज किया गया, उसको नोड को डिफाइन किया गया। तो आगे डिस्कस करेंगे दिस मैट्रिक में बी एडेड ओवर फ्यू नोड्स फॉर ए पर्टिकुलर पाथ। तो दिस मैट्रिक जो पर्टिकुलर नोड के अलग अलग आपके मैट्रिक्स होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं फॉर फर्दर नोड्स, जो फर्दर नोड्स होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पाथ। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब किसी अगर हम पाथ के बारे में अगर बात करते हैं देन देयर आर सो मेनी नोड्स एंड आपके नोड्स जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पिछले नोड्स पे आपका मैट्रिक 3 आपका है एंड कमिंग नोड कोई नोड है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई पाथ है और फिर आपने मैट्रिक कैलकुलेट किया एंड विच रिटर्न ऑन द बिटवीन द टू नोड ब्रांच, उसमें राइट करते हैं एंड फर्दर नेक्स्ट नोड की अगर हम बात करेंगे तो उसके जो ऊपर लाइंस के ऊपर जो आपका लिखा हुआ है उसको फर्दर ऐड कर लेते हैं। जस्ट लाइक मान लिया अगर आपका मैट्रिक वहाँ पे 1 है उस लाइन के केस में, देन प्रीवियस नोड का 3 है, देन आगे का जो फर्दर हमारे नोड्स हैं दैट इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके जैसे हम पर्टिकुलर पाथ के along जब हम पाथ को फॉलो करते हैं देन देयर आर सो मेनी नोड्स एंड फर्दर नोड्स के लिए हम ऐड करने के लिए हम पिछले मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। Then what is the surviving path? And this is the path of the decoded signal with the minimum metric. As you know होता क्या just like this, अभी मैं एग्जांपल कंसीडर करूंगा just like जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे एक नोड ले लिया और मान लीजिए इस नोड से हमें 2 नोड मिला, ठीक है। तो ये एक नोड तो मीन्स इस नोड से हमें 2 पाथ अगर मिल रहे हैं तो कौन सा हम पाथ देखेंगे। जस्ट लाइक इफ यू टेक let us consider here the previous node the metric is I'm taking only the example and 0 and after calculating means मान लिया आपका यहाँ मैट्रिक आप इस पाथ ब्रांच का 2 फाइंड किया एंड यहाँ पहुँचे हमें मान लिया 2 हो जाएगा, मीन्स हम इसको ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली if here the 1 due to the sum code and the metric of that node is equal to 1, previous आपका 0 इसको ऐड कर लेंगे and we get the 1। तो अब हमारा जो इस नोड से जो पाथ आपका ये भी है और ये भी पाथ है, तो हमारे यहाँ सर्वाइविंग पाथ क्या होगा? सर्वाइविंग पाथ वो होगा जिसका अगला नोड जो है उसका मैट्रिक कम होना चाहिए। जस्ट लाइक आपने जो हम मैट्रिक को फाइंड किया, हम मैट्रिक आपका 1 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक, तो ये हमारा 1 क्या है, इस वाले से कम है। तो हमारा ये पाथ जो आपका ये वाला पाथ है जिसका मैट्रिक 2 है, इस पाथ को हम कंसीडर ना करके हम इस पाथ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस पाथ इज कॉल्ड सर्वाइविंग पाथ। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि सर्वाइविंग पाथ क्या होता है, तो टोटली डिपेंड अपॉन द मैट्रिक हम जो कैलकुलेट करेंगे नोड बाय नोड, और एक नोड से दूसरे अगले स्टेज के नोड्स में जाने में बहुत सारे पाथ होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे या जिसको सर्वाइविंग पाथ बोलेंगे जिसके हमारा अगले नोड का मैट्रिक क्या हो, वो कम हो। ओके, ये चीज वही चीज डिस्कस किया गया एंड देन फर्दर okay now in the in Viterbi decoding a metric is assigned to each surviving path। मैं आपसे बोला कि सर्वाइविंग पाथ को हम मैट्रिक हम डिफाइन करते हैं, सारे सर्वाइविंग पाथ मैट्रिक हम डिफाइन कर लेंगे and metric of a particular path is obtained by adding the individual metric on the nodes along the path। तो अभी आप ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो मैट्रिक है जो मैट्रिक हमारा है असाइन टू द ईच सर्वाइविंग पाथ जो आपके हैं, उस सर्वाइविंग पाथ में बहुत सारे नोड्स होंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पाथ में जितने भी नोड्स हैं हम क्या करेंगे, उसके पिछले जितने भी नोड्स हैं हर नोड्स का अपने मैट्रिक को फाइंड किया हुआ है, तो उस सर्वाइवल पाथ का हमारा मैट्रिक क्या होगा, जो लास्ट नोड तक जाने में जो हमें मिलेगा, सारे पिछले सारे नोड्स को एडअप करके एंड एट लास्ट हम उस नोड्स पे लिख देते हैं, ठीक है। and y is decoded as the surviving path with smaller metric। जैसे अभी मैंने बोला जो y को हमें इजीली जो डिकोड करना है that is depend upon the smallest metric and which used to generate the surviving path। तो ये मैंने दो चीज डिस्कस किया, मैंने आपको ब्रीफ किया, दैट इज फर्स्ट वन इज द मैट्रिक, हाउ द मैट्रिक कैलकुलेटेड, अभी मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल लेके।
एंड देन नेक्स्ट अ सर्वाइविंग पाथ, हमने कैसे बताया कि हम जब एक नोड से जब दो नोड आपके आगे या दो पाथ आगे जा रहे हैं तो कौन से पाथ को लेंगे, तो टोटली वी हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नोड मैट्रिक। तो जो स्मॉलेस्ट मैट्रिक होगा उसके लॉन्ग हम पाथ को मूव करेंगे। Now let us consider the example, and here let us consider the following example of the Viterbi decoding. Here I am taking the example that signal between the received is encoded by the encoder, and let the first received bit be this one. यहाँ ले लिया गया है, ठीक है, और ये आपका डिकोड किया गया इसको, मीन्स आफ्टर कन्वोल्यूशनल इनकोडर इनकोड का ये हमारा आउटपुट को सेंड किया गया, फिर हमें फर्दर इसको रिसीव किया गया। तो हियर वी कैन से दैट एज वी नो, हमने डिस्कस किया था आपका जो कन्वोल्यूशन कोड बेसिकली हमारा जो अगर हम लीनियर ब्लॉक कोड के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 2,1, ये हमारा था। मीन्स अगर आपका मैसेज बिट, अगर आपका ये दिस इज द मैसेज बिट, तो नंबर ऑफ जो इनकोडेड बिट हमारा क्या था, वो 2 था। मीन्स एक सिंगल बिट को हम 2 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपने पढ़ा और ऑब्जर्व भी किया था। Now and today we are going to discuss here also the code read will be the 1/2, जो चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 6 बिट लिया हुआ है, मीन्स हमें यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द 3 बिट ऑफ द मैसेज हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ लेट अस लुक एट द कोड ट्रेलिस डायग्राम फॉर दिस इनकोडर। तो हम यहाँ पे ट्रेलिस डायग्राम अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द हाउ टू कैलकुलेट द मैट्रिक। ओके, as we know, if the current state is a, the next state will be the a or b। हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन द कोड ट्री। अगर करंट स्टेट बाय डिफॉल्ट करंट स्टेट हमारा ए होता है, अगर आप करंट स्टेट अगर आप ए पे हैं और आपका नेक्स्ट स्टेट विल बी द ए एंड बी, डिपेंड अपॉन आपने आप इनपुट्स क्या लिया हुआ। वो इनपुट आपका 0 था, दैट इज m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। And the two branches are shown from the A naught. Here by default we start from the state A and A naught represent the level 0, and after that A1 B1 then level 1 define किया गया, and after that A1 B1 इस तरीके से हम define करेंगे A2 B2। तो सब स्क्रिप्ट में जो चीजें यूज करेंगे that is which are used to indicate the levels defined here। The two branches are shown from A naught, one branch is next node is the A1 representing decoded and the signal as 0 0, and other branch is at B1 respectively on decoded signal as 1 1। ये आपका है। ओके, तो एज वी नो हम ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस वाले पार्ट के अगर हम बारे में बात करें कि आप जब आप ये करंट स्टेट अगर आप ए पे हैं, तो अगर आप इनपुट अगर आप 0 दे रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट विल बी ए, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, एंड आउटपुट विल बी द 0 0, ये आपको नोन है। सिमिलरली इफ द मैसेज इनपुट m इज इक्वल टू 1, द नेक्स्ट स्टेट विल बी द b एंड आउटपुट विल बी द 1 1, ये नोन है, ये हमें पता है। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट रिसीट वेक्टर लाइक हियर, जो हमने यहाँ पे 1 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप दिख रहा होगा दिस इज द रिसीट वेक्टर y। now this is the first node, and in this level there are the two nodes and which can be represented by the a1 and b1। now here we have to calculate the metric of each node। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? we have to simply calculate the distance between the receipt vector and the output। ये जो हमारा आउटपुट है उसके हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और वही हमारा क्या होता है, मैट्रिक होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक ऑफ दैट ब्रांच, we can say that of that branch। okay, now ये आप हमारा है क्या, आपको दिख रहा होगा ये तो हमारा ये हमें नोन है, दिस आउटपुट विल बी द नोन क्वांटिटी, और ये ऑलरेडी हमने जिसको 1 1 लिया हुआ है सिंपली समझाने के लिए, जैसे ये आपको पहला ही दिख रहा होगा, यहाँ पहला 1 1 है। तो इस तरीके से हम लेबल्स में डिफाइन कर देंगे उसको, हम कैसे लेबल्स में से प्लेस कर देंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैट्रिक ऑफ द ब्रांच एंड आफ्टर दैट द मैट्रिक ऑफ द नोड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, अगर हम ये देखें इसके बीच में देखेंगे, एंड व्हाट विल बी द हैमिंग डिस्टेंस, दैट इज 2, बिकॉज देयर इज द दोनों प्लेस पे हमारे जो बिट्स हैं वो डिफर कर रहा है। ओके, मींस इन दिस केस द मैट्रिक विल बी द 2, and now next in that in the this for this branch
here 1 1, also here 1 1, both are the same, then metric will be the 0. देन व्हाट विल द मैट्रिक ऑफ a1 एंड b1, तो क्या करना है, सिंपली जो ब्रांच में मैट्रिक आपने राइट किया वो वही मैट्रिक आपका होगा। मींस आपने जो यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था, आपने यहाँ पे 2 कैलकुलेट किया था, तो देन द मैट्रिक ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आपने जो यहाँ मैट्रिक कैलकुलेट किया था वो 0 किया था, देन ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू 0। ओके, वी नो, अब हमें ये भी पता है कि जब आप ए नॉट से ए वन जा रहे हैं और मीन्स हमने जो इनपुट दिया है हमारा वहाँ पे क्या है, आपका वो 0 है। सिमिलरली अगर आप ये वाला पाथ करेंगे, इन दैट केस द एम इज इक्वल टू आपका क्या है, ये 1 है। ये हमें नोन, हमें पता है कि आप ए से ए रहोगे आपका इनपुट 0 है, और आप जब ए से जब बी जा रहे हैं से इनपुट आपका 1 है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हमें मैट्रिक कैलकुलेट कर लिया नोड का, और हमने बोला कि अब इस नोड से आपके दिख रहे हैं दो सर्वाइविंग, दो पाथ गया, एक पाथ ये एक पाथ ये, बट वी रिक्वायर्ड अ सर्वाइविंग पाथ। व्हाट विल बी सर्वाइविंग, सर्वाइविंग पाथ वो होता है जिसके नोड पे जो है मैट्रिक आपका कम से कम होना चाहिए उस सर्वाइवल पाथ में। तो वी नो द मैट्रिक ऑफ नोड b1 is equal to 0, but the metric of node a1 is equal to 2, means this path can't consider but this path consider, means हमारा जो नीचे का पाथ वो कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब कंसीडर होने से क्या होगा, मीन्स अब हमने इसको कंसीडर कर लिया, दिस पाथ इज टू बी कंसीडर्ड हियर। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ सर्वाइविंग पाथ, देन वी नो अगर ये पाथ आपको बच रहा है तो आप ये जब कभी भी आप जब ए से जब बी आते हैं तो हमें पता है व्हाट विल बी द इनपुट, हमारा इनपुट क्या था, मतलब हमारा इनपुट पता होगा, हमने यहाँ पे इससे आप इससे तभी आओगे, आउटपुट तभी मिलेगा ये आपका जब m इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वो आपका 1 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट द मैसेज इज इक्वल टू 1, मैसेज बिट इज इक्वल टू 1 फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपका है जो बताया गया है, इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है फॉर स्टेप बाय स्टेप्स, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको देखना है। नाउ ये बता दिया मैंने कि तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मैट्रिक, मैट्रिक कैलकुलेट लाइक दिस, ये दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज द एंड सर्वाइविंग पाथ, में ये दोनों ध्यान देना है। And after that this is the complete figure, here we take a example of the जो receipt vector हमारा था 1 1 0 0 1 1, तो जैसे आपका ये लेवल 0 हो गया, सिमिलरली ए से जब बी गया तो हमने a1 b1 डिफाइन कर दिया, एंड आफ्टर दैट अगेन ए से बी जाएगा, ये ए वाला अगेन ए से बी जाएगा आपका। सिमिलरली बी आपको पता है सी पे जाता है और डी पे जाता है, ये सब नोन है और ये पहले से हम यहाँ पढ़ चुके हैं। सी से हम ए पे जाते हैं और बी पे जाते हैं, और डी से हम सी पे जाते हैं और डी पे जाते हैं, ये सब नोन है, ये सब हमें पता है कि ऑलरेडी हमने ट्रेलिस डायग्राम पढ़ा था। तो ट्रेलिस डायग्राम में हमने क्या बना था, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लेवल्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं, हमने सिंपली वहाँ पे ए बी सी डी ऐसे साथ में ले लिया, और जस्ट लाइक दिस हमने ये चीज़ दिखाया था, दिस पोर्सन, हमने ये पोर्सन दिखाया था, ये दिस पोर्सन ट्रेलिस डायग्राम में आपको दिखा, आपको याद होगा ये हमने दिखाया था। बट हम यहाँ से इनिशियल हम स्टार्ट किया हमने ए नॉट से जो लेवल्स को डिफाइन कर रहा है, देन a1 b1, देन एट दिस लेवल ऑल द पैरामीटर रिटन लाइक a2 b2 c2 d2, एंड देन हियर a3 b3 c3 एंड d3। ओके, नाउ वी हैव टू राइट ऑन द टॉप लाइक दिस, जैसे अभी हमने पिछले वाले केस में सिर्फ y1 लिया था, बट इन दिट देयर आर द नंबर ऑफ स्टेजेस डिपेंड अपॉन कि कितने आपके यहाँ पे कितने बिट्स का आउटपुट था आपका। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने इसको 1 1 लिख दिया, पहला 2 बिट्स हो गया, फिर ये 2 बिट हो गया, और फिर फर्दर आपका ये 2 बिट हो गया। सिमिलरली अगर आपके और आगे अगर आपके बिट्स होंगे तो हमारा ये और एक और लेवल एक्सटेंड होगा, इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा आपका, ये जो दिख रहा है ऐसे आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, सिमिलरली ये और ये रहा आपका, सिमिलरली ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, एक्सटेंड होगा और हम यहाँ प्लेस कर देंगे a1 a4 b4 c4 एंड d4, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, बट इन द गिवन टेकन एग्जांपल द रिसीट वेक्टर इज ऑफ द 6 बिट,
नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ वो मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट, वी नो when we move this side the output will be the 0 0, and then move this side then output is equal to 1. Similarly this 0 0 and 1 1 हर जगह आपका रिटर्न है। व्हेन जब आप क्या कहते हैं स्टेज से आप जब ए से जब आगे बढ़ रहे हैं, ए से आप ए पे जाओगे और बी से जब बी पे जाओगे, अगेन व्हेन जब बी से आप सी पे आ रहे हो तो ये आपका आउटपुट 1 0 हो गया। सिमिलरली बी से डी जा रहे हैं 0 1 हो गया। अगेन जब सी से आप ए पे जा रहे हो तो आउटपुट दिस वन 1 1, देन सी से बी आ रहा है आउटपुट आपका 0 0। सिमिलरली जब आप सी से डी से सी जा रहे हैं देन आउटपुट 0 0 1, एंड देन डी से आप डी 3 जा रहे हैं तो आप आउटपुट 1 0। तो ट्रेलिस डायग्राम आपने आउटपुट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया था कोड ट्री से, आपने चीज़ें वहाँ लिखी भी गई थी, या बताया भी गया था आपको किस तरीके से कोड ट्री से हमने ट्रेलिस डायग्राम बनाया। फिर ट्रेलिस डायग्राम को हमने कैसे बनाया, हमने उसको स्टेट डायग्राम कंबाइंड फॉर्म में बनाया। तो नंबर ऑफ लेवल्स के फॉर्म में हमने पैरामीटर्स को दिखाया हुआ है और हमने सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दिया गया है। लेवल्स कैसे डिफाइन किया हुआ है, हियर वी आर यूजिंग द सबस्क्रिप्ट साइन व्हिच आर यूज्ड टू indicate the level, just like the A1 A0 represent the 0 level, and A1 1 represent the first level, and 2 and 3 2 represent the second level, and 3 represent the third level. And then after that first of all we have to calculate the metric of all the branch when moving along the path from the one level to the another level, जो चीजें आपकी हैं। And after that just like here हम calculate करें, here the output is equal to the 1 1, then metric of this branch is equal to, then metric of this branch is the 0 0 and 1 1। metric calculate इस branch का metric आपका 2 हो गया because ये 2 bits पे differ कर रहा है। similarly when compare with this one the metric will be the 0। and after that similarly वही हम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैव टू डू, एंड देन अगेन फॉर दिस हम यहाँ पे सारे ब्रांच की मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से अब 0 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इस ब्रांच के बारे में बात करेंगे देन मैट्रिक्स 1 हो गया आपका। सिमिलरली फॉर दैट इज ऑल्सो 1, देन फॉर दिस वन इज इक्वल टू 2, then for this one is equal to 0। correspondingly when we move from this stage to this stage the output this one, and we have to calculate the 4 Hamming distances or distances because there are the 4 branch, already 4 branch पे आपके values को place किया हुआ है। then we have to calculate the differences between the number of bits of places difference किया गया है। and after that for 1 1 we have to calculate the metric 2, and then for this branch 0, and for this branch again this will be the 0, for this 2, for this one, for again this one, for this one, and for this one। इस तरीके से सारे ब्रांच में हमने ब्रैकेट्स में हमने मेंशन कर दिया गया। आपको दिख रहा होगा सारे हमने जितने ब्रांच थे सारे को हमने ब्रैकेट में मेंशन करके हमने यहाँ पे उनके वैल्यूज को हमने प्लेस कर दिया गया जो चीज़ें लिखी हैं। नाउ नेक्स्ट अब हमने जैसे सारी चीज हमने ये मैं कहना चाह रहा हूँ जो मैट्रिक है सारे ब्रांच का हमने कैलकुलेट कर लिया, जस्ट लाइक दिस वन दिस वन दिस दिस, ये 4 हो गया। सिमिलरली हियर आल्सो 8 होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैट्रिक ऑफ द नोड्स। में कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे हम वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे इसके लिए 2 होगा, इसके लिए आपका 0 होगा बस क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे बस यही ब्रांच है, उस ब्रांच में जो ब्रैकेट में लिखा उसको मैं राइट कर लिया। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ तक आपने 2 काउंट कर लिया है और ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। देन फॉर दिस ब्रांच देयर विल बी द 3। आफ्टर दैट इसके लिए 3 हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी आपका यहाँ तक था, अगेन आपने 1 को ऐड कर लिया दिस वन।
अब यहाँ पे आपका 0 था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फॉर दिस नोड देयर विल बी द 2, देन 0, देन यहाँ भी 0 था, देन दिस विल बी द 0, ये आपका 0 हो गया। एंड आफ्टर दैट अगेन फॉर दिस नोड यहाँ तक आपका कितना था, ये आपका ये 2 था एंड 1, ये 3 हो गया आपका, अगेन दिस विल बी द 3, ऐसे हो गया आपका, ये आपका 2 है, दैट इज द 5 ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ तक आपका ये 3 था, यहाँ पे आपका 3 था, ये आपका 0 हुआ तो आपका ये 3 हो गया, ये आपको मिल गया। सिमिलरली यहाँ तक आपका 2 था और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 0 है, तो यहाँ पे भी आपका होगा सिमिलरली, इस तरीके से आपका 2 हो गया। सिमिलरली आप इस तरीके से सारे नोड्स का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जैसे इस नोड पे जैसे आपको आप किसी भी रोड आप क्या कहते हैं पास से आओगे, जैसे मान लिया आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स अगर आप इस नोड से अगर आप आते हैं इस पाथ से, फॉर दैट द मैट्रिक विल बी द 1। अगर आप इस तरीके अगर आप एक पाथ अगर आपका और है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ये पाथ अगर आप आना चाहेंगे तो आपको दिख रहा है ये 3 और यहाँ तक 1 है, अब 3 यहाँ तक आपका 4 है। नाउ हियर वी टेक द मिनिमम मैट्रिक, मीन्स हम अगर देखेंगे तो मिनिमम मैट्रिक्स को लेंगे, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसी को कंसीडर किया हुआ बिकॉज ड्यू टू द लोअर मैट्रिक हमने कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट अब हमें करना क्या है, नाउ इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ट्रेलिस डायग्राम इन अलग अलग स्टेज में ड्रा करेंगे, एंड बाय रिप्रेजेंटिंग द बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट 0 1 2 एंड 3, and on the top write the receipt vector in 2 bits form, and again the calculating the metric of each branch, and then calculate the metric of the each node, and then after that we have to take or select the survival path. Now let us consider, and for this combination for this combination what will be the survival path. If we take here the this node means from this stage to this state move करते हैं तो दो path हैं, तो हम इस path select कर लेंगे because the metric of this node will be less comparison to this one, this path not to be considered. And after that from here there is in front of two nodes there just like this, and means the branch of the metric of this branch 2 and the metric of this branch is equal to 0, which path is survival path again. So the इसके बाद हमारा ये नोड है, ये नोड है, इस नोड का आपका 2 है मैट्रिक और इस नोड का मैट्रिक आपका 0 है। अगेन हियर कंसीडर हियर दिस वन, ये पाथ आपको मिल गया, दिस विल बी द नॉट कंसीडर। and after that from here there is the two path, this one, and after that again this will be the metric of this node is also the one, and the metric of this node will be also the one, okay, means which path is taken. Now in the Viterbi algorithm there is also one term that is the maximum likelihood, maximum likelihood in the sense we can say that पिछले रिकॉर्ड के साथ हम देख सकते हैं कि हम क्या लें, हम क्या लें लाइकलीहुड्स का मतलब जैसे मैं देखूं तो अगर आप देखेंगे कि मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है कि एक और आपको जो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं जरा मैं, बेसिकली है क्या आपको दिख रहा होगा आप जब पहले से दूसरे फेज में आए मीन्स यहाँ पे ये वाला पाथ फॉलो हुआ तो इस स्टेज से आप इस स्टेज से तभी आएंगे जब आपका इनपुट क्या था, इनपुट आपका था 1, ओके। आफ्टर दैट अगेन दिस पाथ विल बी टेकन, बी से डी आप तभी आते हो जब इनपुट हमारा क्या होता है 1, अगेन दिस विल बी द 1, दो 1 आपको मिल गए। now from here there is the two path, and now we have to see the metric of these two nodes, but by due to the some coincidence the metric of these two nodes is equal to 1, and but only the one survival path is there. Now here we take means हम यहाँ से कोई भी select कर सकते हैं because this path is due to the m is equal to 0, and this path is due to the m is equal to 1. Which path is taken?
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक टर्म मैंने लिया तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड इन दैट, हम यहाँ पे ये देखते हैं पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आपके अगर वो नंबर अगर आपका सेम ही आ रहा, अगर हम नीचे वाला लेंगे, अगर हम again for this combination and then this is equal to 1 means here we can say that the message bit of the 111, okay, अगर हम इसको लेंगे then message bit is equal to 110, ये होगा। पॉसिबिलिटी दोनों की होने की है, बट एक वन टर्म इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बिहाफ पे हम इसको लेंगे बिकॉज देयर प्रीवियस टू बिट्स आर सिमिलर एंड थर्ड बिट्स आल्सो सिमिलर लाइक लुक लाइक दिस, देन हियर वी टेक द 111। तो अब यहाँ पे हम इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जो चीज़ें आपकी लिखी गई हैं किस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि तो हमारा सर्वाइवल पाथ अगर हम लेंगे तो हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो दिस पाथ के लिए हमारा मैसेज बिट आपका हो गया 1। नाउ अगेन फॉर दिस पाथ अगेन मैसेज 1। नाउ फॉर दिस पाथ अगेन message 1। now this is the decoding, this is the message bit of the 111, okay। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एल्गोरिथम, आई थिंक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन अगर फर्दर कोई और आपके अगर आपके होते हैं तो हम फिर इसके बाद स्टेप्स को देखेंगे। यहाँ से आपकी ये एक सी पे जाएगा और एक डी पे जाएगा। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द फर्दर दिस नोड एंड दिस नोड, वी कैलकुलेट द मैट्रिक एंड द सर्वाइवल पाथ इज दैट द नेक्स्ट नोड विल बी ऑफ द लोअर मैट्रिक, वी हैव टू चेक दिस, ओके। दिस इज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपको आई थिंक तो समझ में आया होगा, जो चीज़ें हो गई हैं। And after that according to the Viterbi decoding, only the one path with lower matrix should be retained at the particular node। जैसे मैंने आपसे बोला किसी एक नोड पे, जैसे अभी मैंने पिछले के बताया कि एक पर्टिकुलर नोड है, उस नोड के बाद किस सर्वाइवल पाथ को करें जिसका मैट्रिक आपका क्या हो, कम से कम हो। लोअर मैट्रिक्स शुड बी रिटेन्ड एट अ पर्टिकुलर नोड। Now, as shown in the figure, the path marked with the cross are cancelled। यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्रॉस का साइन है, हम क्रॉस कर देते हैं वो कैंसिल हो जाता है। Since they have the higher metric than the other path and coming to that particular node, वही चीज मैंने आपसे बोला कि किसी भी नोड पे अगर आपके हायर पाथ के मैट्रिक्स आपके अगर आते हैं तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लोअर पाथ वाले को लेंगे। These four paths with lower matrix are stored in the decoder and the decoding continue to the next receive bit। इसी तरीके जैसे मैंने आप बोला 1 by 1 आप इसको करते जाएंगे। जिस मान ली फर्दर कोई अगर आपको 2 बिट का और होगा, अगले स्टेज को आप ऐसे बना लेंगे, नोड बना लेंगे, ऐसे 4 नोड आपके हो गए। फिर आप A4, B4, C4 एंड D4 लिख लेंगे। फिर जो भी आपका यहाँ पर आउटपुट रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप ये मैट्रिक को फाइंड करेंगे, देन नोड की मैट्रिक फाइंड करेंगे। एंड सिमिलरली इसके बाद जहाँ भी हो जाएगा, मिलने यहाँ से C और D पे जाएगा, तो कौन सा पाथ होगा डिपेंड अपॉन विच मैट्रिक, विच नोड, किस नोड का मैट्रिक आपका लोअर है। Now this is the complete explanation of the Viterbi decoding। Now the method of decoding used in the Viterbi decoder is the maximum likelihood, okay, this is also called the maximum likelihood। जैसे हमने इस पिछले वाले केस में डिस्कस किया कि ये दोनों मैट्रिक की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों का सेम है, दोनों हो सकता है, तो क्या कौन सा लेंगे। तो मैंने आपसे बोला था ना हम यहाँ पे 111 लेंगे बिकॉज वी हैव टू टेक द मोस्ट लाइकली सीक्वेंसेस इज देयर। Now this is about the Viterbi decoding and this is also the topic today topic, okay, and thank you।